Hello children, we have already read the lesson Robinson Crusoe. Today we are going to continue with its exercise questions. So first of all, let's begin with the question answers. Question number 1. What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? So why did Robinson think that this print is a footprint? You can easily see in this picture that the print looks like a foot. ये जो प्रिंट है ये बिल्कुल एक पैर के निशान के जैसा है. कैसे पहचानेंगे? क्योंकि देखो इसमें हील भी दिख रही है, जो पैर की उंगलियां हैं उनके भी निशान है, और जैसा हमारा पैर छपता है ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है, फुट के सारे पार्ट्स हैं. तो इसीलिए रॉबिन्सन क्रूज़ो को भी लगा कि ये प्रिंट एक फुट प्रिंट ही है, क्योंकि इसमें एक फुट के सारे निशान हैं. The print was exactly the print of a foot, with toes, heel and every part of foot. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. Question number 2. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन क्रूज़ो को झाड़ियों और पेड़ों को देखकर डर क्यों लग रहा था जब वो बीच से अपनी केव की तरफ जा रहा था? आंसर इज रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड टू लुक एट द बुशेस एंड ट्रीज बिकॉज व्हेन ही सॉ अ फुटप्रिंट ही थॉट दैट some savages have come from mainland and they will kill and eat him. जब रॉबिन्सन ने वो फुटप्रिंट देखा तो उसे डर लगने लगा. उसे लगा उस आइलैंड पर उसके अलावा भी कोई और है. उसे शक हुआ कि हो सकता है मेन लैंड से सैवेजेस आ गए हों और वो उसे मारकर खा जाएंगे. सैवेजेस मतलब आदिवासी लोग. क्वेश्चन नंबर 3. Why did Robinson pray when he saw the footprint? Answer. When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for his protection. He was afraid. He was afraid that some savages may be there on the island and they may kill him. So he was praying for his safety and protection. Question number 4. Choose the correct answer. Number 1. Robinson ran back to his home as fast as he could because he was racing, was afraid, was in a hurry to go home. रॉबिन्सन बीच से अपनी केव की तरफ बहुत तेज़ी से भागा. और वो तेज़ी से क्यों भागा? नंबर 1 वो रेस कर रहा था, नंबर 2 वो डरा हुआ था, या नंबर 3 उसे घर जाने की जल्दी थी. What is the correct answer? Correct answer is he was afraid. After looking at the footprint, he was afraid. Number 2. He could not sleep because A. There was an animal outside his cave. Number 2. He thought savages had come from the mainland. And number 3. His bed was uncomfortable. और अपनी केव में पहुंचकर वो सो क्यों नहीं पाया? उसे डर था कि बाहर कोई एनिमल है, या उसे डर था कि कोई सैवेजेस आ गए हैं मेनलैंड से, या फिर उसका बेड अनकंफर्टेबल था. करेक्ट आंसर इज बी. ही थॉट सैवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. नंबर 3. Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? रॉबिन्सन को ये श्योर क्यों था कि वो फुटप्रिंट उसका नहीं है? A. It didn't look like a human footprint. B. It looked smaller than his. या C. He had not come to this part of the beach in a long time. Correct answer is C. He had not come to this part of the beach in a long time. वो बहुत लंबे टाइम से बीच के उस पार्ट पर आया ही नहीं था जहाँ उसने फुटप्रिंट देखा था. तो वो फुटप्रिंट उसका नहीं हो सकता. Number 4. Where was Robinson Crusoe? A. On a boat. B. In a town. C. Alone on an island. या फिर D.
on an aeroplane. Correct answer is C. He was alone on an island. वो एक आइलैंड पर अकेला था, इसीलिए वह फुटप्रिंट देखकर डर गया था कि वहाँ कोई और हो सकता है जिसके पैर का निशान बीच पर उसने देखा. The words in the sentences are jumbled. Write them in order. A. Alone was not Robinson an island on. We have to arrange these words to form proper sentence. Answer is Robinson was not alone on an island. Number 2. Was island the inhabited? Correct sentence will be the island was inhabited. When you write the correct sentence, make sure that the first letter of the sentence is capital and at the end of the sentences you will put a full stop. 3. Footprint to someone this belonged. Correct sentence, this footprint belonged to someone. Number 4. I around me looked. Correct sentence, I looked around me. Number 5. I went the towards footprint large. Correct sentence, I went towards the large footprint. 6. Was afraid I now. Correct sentence, now I was afraid. Now next exercise is joining words. In class 4th we have already done some joining words and we have already understood when to use which joining word. Now we'll do some more. First, or. Or is used to join two sentences when one of them is chosen. और एक जॉइनिंग वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को जॉइन करने में जब हमारे पास चॉइस होती है, यानी कि उस सेंटेंस में दो ऑप्शंस है और उन दोनों में से कोई एक चीज़ हमें चूज़ करनी है या कोई एक चीज़ करेक्ट है, तब हम और यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल हैव कॉफ़ी और टी, कि मैं कॉफ़ी या फिर टी कोई एक चीज़ लूँगी इन दोनों में से, कॉफ़ी और टी में से. इसीलिए जब सिर्फ दो चीज़ों में से एक चूज़ करना है तो हमने और से कनेक्ट किया है. एंड, ऑपोजिट टू और वी यूज़ एंड व्हेन वी हैव बोथ द चॉइसेस करेक्ट. एंड इज यूज्ड to join two sentences when both of the choices are true. That means you want both the things. For example, I'll have tea and biscuits. इसमें दो चीज़ें हैं, टी और बिस्किट्स, और मुझे दोनों ही चाहिए, कोई एक नहीं चाहिए, तो मैंने एंड यूज़ किया इसको कनेक्ट करने के लिए. अगर मुझे कोई एक चाहिए होती तो मैं इसको कनेक्ट करती और से. So is used to join two sentences when first sentence explains the reason for the second. जब हम दो sentences को connect करते हैं और वो sentences ऐसे हैं कि first sentence में reason explain किया गया है कि second sentence में जो बात हुई वो क्यों हुई, तब हम so use करते हैं. For example, I am tired so I'll take rest for some time. सेकेंड सेंटेंस में बताया गया कि मैं रेस्ट करूँगा और फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है कि रेस्ट क्यों करना है, बिकॉज आई एम टायर्ड. तो जब फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न बताया जाता है सेकंड का, तब हम सो से कनेक्ट करते हैं. बट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस व्हेन द आइडियाज इन देम कंट्रास्ट. दैट मीन्स टू डिफरेंट आइडियाज आर देयर इन टू सेंटेंसेस. Then we connect them using but. For example, I'll have tea but I'll not take biscuits. जब फर्स्ट सेंटेंस में कुछ बात की गई है और सेकंड में उससे रिलेटेड बात नहीं, उससे कुछ अलग बोला गया है,
कंट्रास्टिंग बोला गया है तब हम बट से कनेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट में बताया कि मैं चाय लूँगा, लेकिन सेकंड में बताया कि बिस्किट्स नहीं लूँगा, तो ये कंट्रास्टिंग आइडियाज़ होंगे, तो आप उसको बट से कनेक्ट करेंगे। Because is used to join two sentences when second sentence explains the reason for first. जैसे आपने सो से कनेक्ट किया था जब फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न बताया गया था, लेकिन जब सेकेंड सेंटेंस में रीज़न बताया जाता है और फर्स्ट सेंटेंस में कोई बात बताई जाती है तो आप बिकॉज से कनेक्ट करते हैं। ये सो का ऑपोजिट हो गया। सो में फर्स्ट वाले में रीज़न बताया जाता है और बिकॉज में सेकेंड सेंटेंस में रीज़न बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सैड फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज आई लॉस्ट माई फेवरेट पेन। ये सेकेंड सेंटेंस है, आई लॉस्ट माई फेवरेट पेन, तो ये वाला रीज़न है। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम सैड, सैड होने का रीज़न सेकेंड सेंटेंस में बताया है और इसीलिए हमने इसको बिकॉज से कनेक्ट किया है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। ये वाले कनेक्टिंग वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। 1. I was frightened डैश क्यूरियस। अब फ्राइटेंड और क्यूरियस को आप देखिए। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ और क्यूरियस मतलब एक्साइटेड, जिसको और जानना है। तो ये सिमिलर चीज़ें हैं तो आप एंड से कनेक्ट करोगे, अलग अलग हैं तो आप बट से कनेक्ट करोगे, और लगता है कि किसी में किसी का रीज़न है तो बिकॉज या सो। अब रीज़न तो इसमें बताया नहीं गया तो आप इसको एंड या फिर बट से ज्वाइन करोगे। अब फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ और क्यूरियस मतलब एक्साइटेड टू नो मोर, तो ये दो अलग तरह की फीलिंग्स है, तो आप इसको बट से कनेक्ट करेंगे। नंबर 2, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। फर्स्ट कि बीच पे जाना डिसाइड किया, और सेकेंड कि पानी की जो वाटर की एज है उसके साथ साथ मैं चलता रहा। तो इसमें फर्स्ट वाले में रीज़न बताया गया है और सेकंड में बताया कि फिर वो बात वाटर की एज के अलॉन्ग वो क्यों चल रहा था। तो फर्स्ट में रीज़न है तो आप सो से कनेक्ट करेंगे। नाउ 3, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड। अब इसमें ऑपोजिट है। इसमें सेकेंड सेंटेंस में रीज़न बताया कि वो डरा हुआ था और फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है कि उसने क्या एक्शन किया, कि वो बहुत तेज़ भाग रहा था। क्यों भाग रहा था उसका रीज़न सेकेंड सेंटेंस में। तो सेकेंड सेंटेंस में जब रीज़न होता है तो आप बिकॉज से कनेक्ट करते हैं। नंबर 4, आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज्ड। कि टायर्ड मतलब बहुत थका हुआ और कन्फ्यूज्ड मतलब जिसको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर से वो हैं, फीलिंग्स है, तो आप इसको एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड। अब ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक एक्सरसाइज है जिसमें कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस है और कॉलम बी में कुछ सेंटेंसेस है। आपको ए में से कोई एक सेंटेंस बी में से किसी एक सेंटेंस से ज्वाइन करना है और ऊपर जो ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करना है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंसेस के पेयर चूज़ करने पड़ेंगे कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा सेंटेंस लिखा जा सकता है। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, आई कैन सिंग वेल, तो इसमें सिंगिंग की बात की गई है। तो दूसरा जो हमें सेंटेंस चूज़ करना है वो कुछ इसी तरह का चूज़ करना है जिसमें हो सकता है किसी हॉबी की बात की हो, जिसमें या तो सिमिलर आइडिया हो या थोड़ा कंट्रास्टिंग आइडिया हो कि कुछ जो नहीं कर पाता है। फर्स्ट में बता रहा है कि सिंगिंग कर पाता है तो इसमें कुछ ढूंढना होगा कुछ नहीं कर पाता है, या फिर सिंगिंग का रीज़न बताया गया हो। ठीक है, तो आपको उसके सिमिलर एक सेंटेंस ढूंढना होगा जो उसके साथ ज्वाइन हो सकता है, और फिर आपको करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड चूज़ करना होगा कि सिमिलर आइडिया है, डिफरेंट आइडिया है, रीज़न है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ करेंगे। सो लेट्स डू। फर्स्ट, I can sing well. From column B, I have chosen I can't dance at all. अब इसमें एक चीज़ कर सकता है दूसरी नहीं कर सकता है, तो एक कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हो गए। कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को आप बट से ज्वाइन करेंगे। I can sing well but I can't dance at
all. नंबर 2, कॉलम ए से हमने लिया शी वोर अ रेनकोट. कॉलम बी से हमने लिया इट वॉज रेनिंग, क्योंकि रेनकोट से सिमिलर आइडिया है रेनिंग. लेकिन अब इसमें देखिए कि सेकेंड सेंटेंस में रीज़न बताया है कि उसने रेनकोट क्यों पहना. जब सेकेंड सेंटेंस में रीज़न है तो आप बिकॉज से कनेक्ट करते हैं. शी वोर अ रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग. जब भी रीज़न बताया जाएगा तो आप या तो सो से कनेक्ट करेंगे या बिकॉज से. अगर सेकेंड सेंटेंस में रीज़न है तो बिकॉज से, और फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न है तो सो से. वी मे गो टू शिमला. वी मे गो टू दार्जिलिंग. अब दोनों जगह तो नहीं जा सकते एक साथ, दोनों में से किसी एक जगह, तो दोनों में से कोई एक चूज़ करना है तो आप कनेक्ट करेंगे और से. वी मे गो टू शिमला और दार्जिलिंग. नंबर 4, he wanted a book for his birthday. He wanted a football for his birthday. यानी कि उसको अपने बर्थडे प्रेजेंट में बुक चाहिए थी और फुटबॉल भी चाहिए थी. तो आप इसको कनेक्ट करेंगे एंड से. He wanted a book and a football for his birthday. He missed the school bus. He was late to school. अब इसमें फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न बताया गया है, सेकेंड सेंटेंस में बताया गया कि वो स्कूल लेट हो गया. और लेट होने का रीज़न क्या है कि स्कूल बस मिस हो गई. जब फर्स्ट सेंटेंस में रीज़न होता है तब आप सो से कनेक्ट करते हैं. ही मिस्ड द स्कूल बस सो ही वॉज लेट टू स्कूल. आई रोट अ लेटर. आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट. फर्स्ट में बताया लेटर लिखा और सेकंड में बताया कि उसको पोस्ट करना भूल गए. तो ये आइडियाज़ कंट्रास्टिंग हो गए, क्योंकि लेटर जब लिखते हैं तो उसको पोस्ट भी करते हैं लेकिन पोस्ट नहीं किया है. कंट्रास्टिंग आइडियाज़ है तो आप बट से कनेक्ट करेंगे. आई रोट द लेटर बट फॉरगॉट टू पोस्ट इट. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड pyramid. You will complete this pyramid with some letters. First, a 2-letter word beginning with B. सबसे ऊपर आपको एक 2 लेटर का वर्ड लिखना है जो B से शुरू होता है. It can be BE, B. Second, a 3-letter word beginning with C. C से शुरू होने वाला 3-letter word. It can be CAP, cap. You can write some other word of your choice. Number 3, a 4-letter word beginning with D. D से शुरू होने वाला 4-letter का word. It can be DEER, deer. You can write some other word which begins with D and which is of 4 letters. Next, a 5-letter word beginning with E. It can be EMPTY, empty. Next, a 6-letter word beginning with F. It can be FLOWER, flower. So, this word pyramid can be completed with any words of your choice. Just take care of the initial letter and the number of letters. You can write some different words also. Thank you and have a nice day.